آداب. آج ضلع پونچھ کے تحصیل منڈی کے فتح پور ہاڑی بڈھا میں HQ 6 سیکٹر یونٹ 16 RR کی طرف سے ہاڑی بڈھا میں نالج کمپٹیشن آف OP سدبھاونا کے تحت کروایا گیا. یہاں کی عوام نے 16 RR کے کمپنی کمانڈر ہاڑی بڈھا اور ان کی فوج کا شکریہ ادا کیا اور آرمی سے کہا کہ وہ ہر پنچایت میں ایسے پروگرام کروائیں تاکہ غریب عوام کو آرمی کی اسکیموں سے فائدہ ہو سکے. اس کے بعد بچوں کے کمپٹیشن کا رزلٹ ہوا تو اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ انعامات سے بھی بچوں کو نوازا گیا. آئیے دکھاتے ہیں فتح پور کے ہاڑی بڈھا سے یہ رپورٹ. ایک شعر سے میں آج کی اپنی اسپیچ کا آغاز کرتا ہوں. ادب کے منچ پر انسان سے انسان ملتا ہے, ادب کے منچ پر انسان سے انسان ملتا ہے, یہاں رام ملتا ہے, یہاں رحمان ملتا ہے, یہاں نہ کوئی ہندو ہے نہ مسلم نہ سکھ نہ عیسائی, یہ وہ منچ ہے جہاں ہندوستان ملتا ہے. ریسپیکٹڈ چیف گیسٹ ظفر صاحب اور ٹیچرز, پولیس سرپنچز اینڈ پنچز اینڈ ایوری ون پریزنٹ ہیئر, a very good afternoon to all of you today. I am deliver speech importance of English education for job. Importance of English education for job in today's competitive world. Importance of English cannot be ignored. English is one of the most spoken language in the world. People from different parts of the world having different language as their mother tongue are able to communicate easily with the knowledge of English. Nowadays, English has become the language of education in many countries. In India itself, we have numerous English medium schools. It becomes convenient for a student to get higher education from Western countries if he already know English. Today, English has also become important to make a good career. Many multinational companies prefer job aspirants who have a good knowledge of English. Thank you so much. لیکن ادیش یہ تھا کہ بچوں کے گھر میں پرائز پہنچے, ان کی حوصلہ افزائی ہو, اور مجھے وشواس ہے کہ ایونٹ کے بعد بچوں میں ضرور ایک اتساہ آئے گا اور دل لا کے پڑھائی کریں گے. اسی کے ساتھ میں ہوش کو دیتا ہوں کہ آپ کمیشن کو آگے بڑھائیں. میرا ملک میرا دیش میرا یہ وطن, شانتی کا ہمتی کا پیار کا چمن, جس کے واسطے مثال ہے میرا تن میرا من. اے وطن اے وطن اے وطن, جان من جان من جان من. اے وطن اے وطن اے وطن, جان من جان من جان من. میرا ملک میرا دیش میرا یہ وطن, شانتی کا ہمتی کا پیار کا چلن. میرا ملک میرا دیش میرا یہ وطن, شانتی کا ہمتی کا پیار کا. The government is running a large number of projects for education and skill development of women so that they can get economic independence. Quality education is the key to women's empowerment. With the increase in literacy level and awareness, مثال دو, مارا ہو باپ نے کوئی بیٹا مثال دو. محترم جناب CO صاحب اور باہر سے آئے ہوئے مہمان خصوصی اور میرے استاذہ اکرام, میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے اسٹیج پر آنے کی دعوت دی. اور میں آپ کو عورت کے بارے میں چند الفاظ بولنا چاہتی ہوں. آج کے دور میں عورتوں کو کم ہی پڑھایا لکھایا جاتا ہے. کئی جگہوں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو لڑکیوں کی کم عمر میں شادی کروا دیتے ہیں. teachers and village sarpanches and my brother and sister, good afternoon to all of you. Firstly, I will tell about myself. I am Shafia from 10th standard and welcome you all from the call of my heart on the behalf of NPR. Today I want to deliver of a speech before you on the empowerment women in society.
Women is the empowerment of women to take their own decision for their personal development as well as social development. Empowerment of women would mean encouraging women to be a self-reliant, independent, have position, self-esteem, generate confidence to face any difficult situation and incite activity, participations in various social, political development and endeavors. In the ancient time, women were treated मंच पर इंसान से इंसान मिलते हैं, यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है, यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ पर राम मिलता है। ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, यही वो मंच है जहाँ पर पूरा हिंदुस्तान मिलता है। है जी काबिल कदर, काबिल सद एहतराम मेहमानान इज़ाम, मैं वक़्त की दौलत को समझते हुए अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे ही नहीं बल्कि हर दिल अजीज उस्ताद इकराम में से एक उस्ताद इकराम एम के साबरी सर, जिनके सामने मैं आज स्टेज पर बोल रहा हूँ। महात्मा गांधी एक बहुत साज बल्कि तारीख साज शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने अपने कौल और फेल, मजबूत अज़ाइम और असूलों की पाबंदी से का मुजाहिरा करते हुए हिंदुस्तान की तकदीर बदलने के साथ सरदोश है। तकदीर बदलने के साथ साथ गैरों को भी और मुल्कों को मैं गैरों की गुलामी से आजाद करवाया। मैं वक़्त की दौलत को समझते हुए चंद अशार के साथ इजाजत चाहूंगा। पहन के खाट की चप्पल जिसने सत्याग्रह का राग सुनाया था, पहन के खाट की चप्पल जिसने सत्याग्रह का राग सुनाया था, देश का था अमूल व दीपक जो महात्मा कहलाया था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आप इस शेर के साथ में इजाजत से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नई टेक्नोलॉजी हो, माशी खुशहाली या फिर साजो सामान का होना इन तमाम पर कोई फख्र महसूस करती है। मेरे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की सरकार हो या हिंदुस्तान की सोशल एक्टिविस्ट हो या दीगर फौज के अंदर ये जिस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करवाए जा रहे हैं, सद्भावना के तहत स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए एक ग्रेट इनिशिएटिव, आई अप्रिशिएट यू सर, आपने ये ग्रेट इनिशिएटिव असर हाजिर में ये लिया कि इस बैकवर्ड एरिया में स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए। ये स्टूडेंट डिमोरलाइज हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स सोशल मीडिया के ऊपर बहके हुए हैं, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर बहके हुए हैं, कुछ नशे की लत-पत में गुमजन है। एक अच्छा इनिशिएटिव आपकी तरफ से कि इस असर हाजिर में शिक्षा लेने के लिए अंग्रेजी जुबान का होना बहुत ही जरूरी, क्योंकि एक डिग्री होल्डर होने के नाते एक हालिस ग्रेजुएट होना इट्स नॉट ए मैटर के हालिस ग्रेजुएट हो जाए तो आपको नौकरी प्राप्त हो जाएगी। इट्स नॉट ए मैटर के मुदारिस में अंग्रेजी जुबान नहीं सिखाई जाती। आज टेक्नोलॉजी हद से पार कर गई है, घर बैठे आपको हर चीज मुहैया करवाई जा रही है। यूट्यूब एक से बढ़कर एक लेक्चर फ्राहम कर रही है, गूगल आपको हर चीज से आरास्ता कर रही है। मगर फिर अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि लोग आज इसको डिमोटिवेट और डिमोरलाइज कि किसी अच्छे से शिक्षा आप किसी अच्छे से संस्था दल में जाए तो वहां जाकर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग होगा। तो वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगा। तकरीब और प्यारे तलबा और तालिबात, मैं आपके सामने औरत के बाइख्यार और तालीम के बारे चंद मारूजात पेश करती हूँ। मोहतरम ग्रामीण के दिल सामीन, औरत कायनात की सबसे दिलकश और पेशकश बहार सरमाया है। इसके वजूद के बगैर कायनात में न रौनक है और न नस्ल इंसानी की बका मुमकिन है। बकौले शायर, हया का आईना और वफा की जान है बेटी, हया का आईना और वफा की जान है बेटी, हमारे घर की रौनक और जिंदगी की शान है बेटी। औरत अपने मुख्तलिफ रूप यानी माँ, बहन, बीवी, बेटी, मर्द को अपने हर रूप के एतबार से सहारा देती है और अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से घर को आबाद करती है। ये मोहब्बत और शफकत की पैकरिया मुजस्मा, महर वफा, अपने वालिद की ताअतगुज़ार दुख्तर, अपने भाइयों के नाज और नखरे उठाने वाली बहन, माँ की खातिम बेटी और अपने शोहर की वफाशार शरीके हयात है। ये हयात ग्रोथ ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन। Right to Equality Act as per the Indian Constitution help in empowering the women in India. सरपंच साहिबान की तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा हर बार हर जगह ये
सब भावना के तहत प्रोग्राम रखते हैं। और इस बार खासकर इन्होंने जो हमारे इस ब्लॉक में हाड़ीपुटा टॉप में जहाँ कोई आके राजी नहीं है वहाँ पे इन्होंने अपना प्रोग्राम रखा। इस बात के मुबारकबाद के मौसीक हैं ये कि इनकी कोशिशों से और इनकी मेहनतों से और इनके साथ जो इनके सूबेदार साहब हैं और जवान सभी हैं उन सब का मैं अपने दिल की गहराइयों से और अपनी आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके लिए ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनके तरक्की दे और इनकी सेहत तंदुरुस्त रखे और ये ऐसे ही खिदमत करते रहें। यहाँ पर हिंदू साहब का मसला है, इनकी जितनी भी हम तारीफ करें ये नहीं ये तारीफ के काबिल हैं। जो ऑफिसर काम करते हैं हम उनकी तारीफ करते हैं, जो काम नहीं करते हैं हम उनको मुंह पे बोलते हैं। इतनी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जुर्रत दी है, इन लोगों ने हमें ताकत दी हुई है। सच बात मुंह पे कहने की हमें ताकत है इंशाअल्लाह। ये हर जगह हर वक्त जहाँ भी इनकी जरूरत होती है ये पहुँचते हैं। आज हमारे यहाँ खार ग्राम एरिया में हाड़ीपुटा के टॉप में जहाँ हम लोगों में से कोई आके राजी नहीं है वहाँ इन्होंने अपना प्रोग्राम रखाया। इस प्रोग्राम को रखने के लिए कहने तो बहुत आसान है लेकिन इसमें मेहनत और मुशक्कत कितनी लगती है ये हम सब बेहतर जानते हैं। हम आए प्रोग्राम देखने के लिए 1-2 घंटे बैठते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने कितने दिन से इसकी तैयारी की। इस पहाड़ी एरिया में इस जगह में जहां बैठने के लिए जगह भी प्लान नहीं है वहां इन्होंने अपने जवान लगा के तैयारी की। और मैं इस बात को मुबारकबाद सरपंच साहिबान को और अपने पंच साहिबान को अपने इलाके के लोगों को देता हूं कि वो हमेशा हमारी फोर्स के साथ मिलकर कोऑपरेट करते हैं। फौज हमेशा हमारे साथ है, ये हमारे लिए है, हम इनमें से हैं। इनको हमारी जहां भी जरूरत है हम इनके साथ हैं। इनका और हमारा तालमेल रहा है और इंशाअल्लाह